In our previous section, we studied the concept and mechanism of buffer solutions. There are two kinds of buffer solution. We saw acidic buffer solution and basic buffer solution. There are various applications of buffer solutions, like buffer solution is used to maintain the pH of the human blood in the range from 7.35 to 7.45. The human blood buffer consists of carbonic acid and bicarbonate ions. Carbonic acid and bicarbonate ions. Other than blood, the buffer solutions are used in agriculture to maintain the pH of soil. They are used in industries like paint industry, dye industry, paper industry, ink industry, etc. It is also used in analytical chemistry for qualitative analysis purposes. Now, after understanding the uses of buffer solutions, let us try to derive the Henderson-Hasselbalch equation for pH of buffer. हमने पिछले सेक्शन में ये इक्वेशन का जिक्र किया था. pH is pKa plus log of salt concentration upon acid concentration. तो ये इक्वेशन जो है इसे कहते हैं Henderson-Hasselbalch equation. It is used to determine the pH of a buffer solution. बफर सॉल्यूशन क्या होता है? वीक एसिड जिसका कांस्टेंट हम लोग जो बोलेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट है Ka, और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड जिसका कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन. द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन and Ka of acid will be given to us in problems, and we will have to find the pH of the resulting buffer solution. तो ये इक्वेशन अब हम लोग डिराइव करना चालू करते हैं. So if you remember, हम लोग बफर सॉल्यूशन में एसिडिक बफर फर्स्ट केस लिया था, जिसमें we took the example of weak acid as acetic acid and salt of weak acid as sodium acetate. सॉल्ट ऑफ वीक एसिड कौन सा था? सोडियम एसिटेट. ओके, तो हम लोग ने यही एग्जांपल आगे कंटिन्यू करना है. वी विल अगेन यूज द सेम एग्जांपल फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन. वी हैव एसिटिक एसिड which dissociate into acetate ions and H plus ions which further combine to form hydronium ions with water. तो ये हमारा एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन का रिएक्शन है. द strong salt of weak acid acetic acid which is sodium acetate. हमारे पास सॉल्ट जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, वो कंप्लीट डिसोसिएशन करते हैं. तो द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट. ओके, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है सोडियम एसिटेट. वैसे तो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स इटसेल्फ आर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स, वेरी फ्यू सॉल्ट्स आर वीक सॉल्ट्स. एग्जांपल्स वेयर इफ यू रिमेंबर कॉपर क्लोराइड, ऐसे जो एग्जांपल्स हैं, तो those came under the category of weak salts. They do not dissociate completely. But जो हम लोग यहाँ पे सोडियम एसिटेट सॉल्ट लिया है, this is the strong salt. It dissociates completely into acetate ions and sodium ions. तो ये हमारा complete 100% dissociation reaction है. अब हम लोग इसको एक तरह से जनरल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं. Instead of taking this particular example of acetic acid and its salt, we take a general example. तो general example हम लोग कैसे लिखते हैं acid? If you remember, we wrote the acid as Ha. Okay? अब अगर ये acid weak है, जो कि buffer solution में we want weak acid, तो it will dissociate reversibly into H plus and A minus. Okay? फिर उसके अलावा जो salt होगा, salt के लिए हमारा symbol है Ba. Okay? तो this will dissociate कंप्लीटली. यहां पे रिवर्सिबल साइन नहीं आएगा बिकॉज सॉल्ट डिसोसिएट्स 100%. तो ये B प्लस और A माइनस बनेगा. तो हमारे एग्जांपल में ये क्या है? सपोज वी हैव एसिटिक एसिड, तो CH3COOH. दिस विल डिसोसिएट रिवर्सिबली इनटू H प्लस एंड CH3COO माइनस. तो ये जो हमारे पास यहां पे बन रहा है, दिस इज A माइनस. ये जो एसिटेट आयंस होंगे,
दिस विल बी करस्पॉन्डिंग टू A माइनस। और जो सॉल्ट है, दिस इज द सॉल्ट एंड दिस इज द वीक एसिड। ओके, तो सॉल्ट जो हमारे पास यहां पे है दैट इज CH3COONA, सोडियम एसिटेट। इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू Na plus acetate ions which is CH3COO minus। तो A माइनस हमारे यहां पे क्या है? A माइनस आर द एसिटेट आयंस इन दिस रिएक्शन एंड B प्लस क्या है? इट इज द कैटायन ऑफ द सॉल्ट। B प्लस क्या है? कैटायन ऑफ द सॉल्ट। B प्लस इज द कैटायन। किसका कैटायन? सॉल्ट का, कैटायन ऑफ सॉल्ट। तो ऐसा हमारे पास ये कंसेप्ट है। तो जनरल केस में हम लोग एसिड को लिख सकते हैं Ha which dissociates into H plus and A minus। A minus is the acetate ion in this example and Ba, salt, dissociates into cation of the salt B plus and A minus। In this case again A minus is the acetate ions and B plus is the cation of the salt which is sodium, सोडियम वाला cation। तो ये ऐसा हमारे पास जनरल रिएक्शन। तो अगर हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट का बात करें, आयोनाइजेशन कांस्टेंट का बात करें, तो क्या हम लोग सॉल्ट के बारे में बात करेंगे? नहीं। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो तो 100% डिसोसिएट होता है, तो उसके लिए हम लोग आयोनाइजेशन कांस्टेंट का बात नहीं करते, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बात नहीं करते। आयोनाइजेशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड ओनली फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। इन दिस केस इट इज Ha बिकॉज दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो Ha के लिए हम लोग ने आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का इक्वेशन लिखा। तो इफ यू रिमेंबर, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स raised to their stoichiometric coefficient upon concentration of reactants raised to its stoichiometric coefficient। तो यहां पे हमारे पास इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स हैं H प्लस और A माइनस, तो इसीलिए मैंने प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई किया और कोफिशिएंट तो यहाँ पे 1 है, तो पावर भी यहाँ पे 1 होगा, वो लिख के मतलब नहीं। और रिएक्टेंट यहाँ पे पास जो हमारे पास है वो है Ha। तो दिस इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक एसिड। अब इसको हम लोग को pH निकालना है। इन दिस केस वी आर ट्राइंग टू डिराइव द हेंडरसन-हासेलबैच इक्वेशन। सो हेंडरसन-हासेलबैच इक्वेशन इज दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन है वो हमारे पास हेंडरसन-हासेलबैच इक्वेशन है फॉर एसिडिक बफर। तो इसमें हमें pH निकालना होता है। तो pH निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? pH इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो हमें H प्लस कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा। तो इसीलिए हम लोग H प्लस को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सब टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो H प्लस आई हैव केप्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ऑल अदर टर्म्स आई हैव मूव्ड टू द RHS, ओके, राइट हैंड साइड। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इस इक्वेशन में ये जो Ha है, Ha क्या था? दिस वाज वीक एसिड। Ha क्या था? वीक एसिड। तो इसीलिए मैं Ha को लिख दूंगा एसिड कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अब ये A माइनस जो है, ओके, ये माइनस, A माइनस कहां से आएगा ज्यादातर? देखो A माइनस अगर मैं पूछूं, A माइनस मींस एसिटेट आयंस, ओके, हमारे एग्जांपल में A माइनस क्या है? एसिटेट आयंस। एसिटेट आयंस ज्यादा कहां से आएंगे? फर्स्ट रिएक्शन से या सेकंड रिएक्शन से? तो थिंक कैन आंसर दिस। तो yes, acetate ions will mostly come from the second reaction because the second reaction is dissociation of salt and salt are strong electrolytes, तो वो 100% dissociate होते हैं। Salts are strong electrolytes, they dissociate completely। तो इसीलिए यहां से acetate ions बहुत सारे बनेंगे। much bigger concentration of acetate ions will be from the second reaction, very small concentration of acetate ions will be coming from the फर्स्ट रिएक्शन, बिकॉज दिस इज अ वीक एसिड। वीक एसिड थोड़ा सा ही डिसोसिएट होगा, थोड़े से ही एसिटेट आयंस यहां से बनेंगे। मोस्ट ऑफ द एसिटेट आयंस विल बी कमिंग फ्रॉम द डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट, ओके। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सारा का सारा जो एसिटेट आयंस है वो डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट से आया है। सारा का सारा जो एसिटेट आयंस आया है ये डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट से आया है। तो we can say concentration of acetate ions equals concentration of the salt. Concentration of acetate ions
इक्वल्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। सॉल्ट मतलब Ba, जनरल टर्म्स में सॉल्ट हम लोग क्या लिखते हैं, Ba। तो इसीलिए A माइनस को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं Ba से, तो वही मैंने यहां किया है। A माइनस को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं Ba से, लेकिन Ba क्या है, Ba तो है सॉल्ट, तो इसीलिए हम लोग इसको सॉल्ट लिख दिए। A माइनस Ba है, लेकिन Ba सॉल्ट है, इसीलिए मैंने A माइनस को सॉल्ट लिख दिया। A माइनस concentration is equal to Ba concentration, but Ba है salt, इसीलिए it is equal to salt concentration। तो इसीलिए हम लोग A माइनस को रिप्लेस कर सकते हैं with salt concentration। A माइनस को रिप्लेस कर दिया with salt concentration। अब यहां से यहां आना तो बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, दोनों साइड log ले लो। ओके, दोनों साइड we will take what, log, take log on both sides। तो देखो ये किसी किसी को डाउट होता है ये लॉग कैसे लेना है, तो दैट ऑल हैज टू डू विद मैथमेटिक्स। थोड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स हम लोग को करना है। 11th का मैथमेटिक्स अच्छे से आना चाहिए, फिर ही ये सब समझ में आएगा। अगर लॉग का बेसिक्स नहीं आता है तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। तो इफ यू नो मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड परफेक्टली, देन दिस इज अ केक वॉक काइंड ऑफ थिंग। तो लेट अस डिराइव फ्रॉम दिस टू दिस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिराइव करने का कोशिश करें। लेट मी फर्स्ट राइट द गिवन इक्वेशन। H प्लस इज Ka into concentration of acid upon concentration of salt. Take log on both sides. So log of H plus concentration will be log of Ka। Okay, अब देखो इस फर्स्ट टर्म को हम लोग x मानेंगे, सेकेंड टर्म को y मानेंगे। ओके, तो हमारे पास x y टर्म है, यहां पे क्या है x y। तो जब दोनों साइड log लेंगे तो ये हो जाएगा log x प्लस log y। ये सबको आता है। log of xy is log x plus log y। when we take log on both sides, यहां भी log लिया और यहां भी log लिया RHS में, तो log of xy is log x plus log y। तो log of x मतलब log of Ka प्लस लॉग ऑफ ये टर्म y है, तो लॉग ऑफ एसिड कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब ये लॉग कौन सा लॉग है, कॉमन लॉगरिथम, मींस लॉग टू द बेस 10। मल्टीप्लाई दिस फुल इक्वेशन बाय -1, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे दैट वी विल सी। तो यहां माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, यहां भी माइनस आ जाएगा, और प्लस ऑफ माइनस माइनस। अब माइनस से मल्टीप्लाई करने का क्या फायदा होगा, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस को हम लोग लिख सकते हैं PH। PH क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, इसीलिए माइनस से मल्टीप्लाई। माइनस लॉग ऑफ K क्या है, PK। तो देखो हमारा फर्स्ट दो टर्म्स आ चुका है। ओके, फिर माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड की जगह पे हमारे पास है एसिड अपॉन सॉल्ट। अब ये सिर्फ उल्टा दिख रहा है यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट से, तो वो भी इजी है। ये कैसे आएगा, तो देखो ये माइनस को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, और ये पूरा टर्म रेज टू -1 कर सकते हैं। ओके, ये कैसे हो गया, इट इज लाइक दिस, माइनस लॉग एक्स इज लॉग ऑफ एक्स रेज टू -1। ये मैथ्स का प्रॉपर्टी, इसीलिए बोला मैथ्स आना चाहिए, अदरवाइज यू कांट अंडरस्टैंड दिस। ओके, और इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स, तो ये प्लस लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए जब हम लोग यहां माइनस का प्लस करेंगे तो यहां रेस टू -1 हो जाएगा। अब रेस टू -1 मतलब मैथ्स में उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो एसिड अपॉन सॉल्ट बन जाएगा सॉल्ट अपॉन एसिड। ओके, और log to the base 10। तो isn't it a simple thing to derive Henderson-Hasselbalch equation? Once you know the first step, you will be able to get the next set of steps easily if you are familiar with the basic mathematics of 11th standard। Okay, तो ऐसा हम लोग ने ये इक्वेशन डिराइव कर लिया। दिस इज द Henderson-Hasselbalch इक्वेशन फॉर अ एसिडिक बफर। अब अगर बेसिक बफर होता, तो बेसिक बफर का बेस का एग्जांपल, वीक बेस हम लोग ने लिया था एग्जांपल NH4OH। बेसिक बफर देखते हैं आप लोग। नाउ वी आर ट्राइंग टू डिराइव द इक्वेशन फॉर बेसिक बफर। तो the weak base which we saw was NH4OH,
NH4OH will dissociate into ammonium ions and hydroxide ions. And this salt of weak base we will have as NH4Cl. पिछले दोनों केसेस, दोनों सेक्शंस में हम लोग ने यही एग्जांपल लिया. आई थिंक यू आर फेमिलियर विद इट नाउ. So the salt will dissociate completely into ammonium ions and chloride ions. Let us write the equation of Kb. Ka tha ionization constant of acid. Now we have weak base. For basic buffer we are taking a weak base. तो weak base का dissociation constant होगा Kb, which is concentration of products. ये इस reaction के लिए होगा. Kb का जो equation होगा वो reversible equation के लिए होता है. तो reversible equation ऊपर वाला equation. तो concentration of products upon concentration of reactant. इसको पहले हम लोग जनरल फॉर्म में लिखना अच्छा रहेगा. तो HA एसिडिक बफर के लिए था, तो बेसिक बफर के लिए हम लोग जनरल एक्सप्रेशन डिराइव करने का कोशिश करते हैं. तो फॉर बेसिक बफर इंस्टेड ऑफ एसिड वी विल हैव डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस. वीक बेस कौन सा? BOH. एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस कौन सा होगा? तो इट विल बी सेम. ओके, Ba is B plus into A minus. And dissociation of base क्या होगा? This will be like this, B plus plus OH minus. अब अगर इस इक्वेशन के लिए Kb का बात किया जाए, because this is a weak base, Kb का बात कर रहे हैं, तो Kb का इक्वेशन क्या होगा? Concentration of products upon concentration of reactant. Okay, concentration of products अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. तो Kb आएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब B प्लस इंटू OH माइनस. अपॉन BOH. ओके, अब हमें इस केस में बेसिक बफर के लिए हेंडरसन-हैसेलबैच इक्वेशन निकालना है. तो व्हाट विल बी द रिजल्टिंग इक्वेशन? इंस्टेड ऑफ दिस एसिड इक्वेशन we will have the basic equation as POH is equal to PKB plus log of salt upon base concentration. Okay, ये इक्वेशन डिराइव करना है. तो ये इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम लोग को POH चाहिए, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए. तो इसीलिए मैं OH माइनस टर्म को LHS में लिखेगा, बाकी सब टर्म्स में RHS में लिख देगा. So I am writing OH minus term on the LHS. So OH minus concentration equals Kb into BOH upon B plus concentration. Okay, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं. फिर उसके बाद what? Again same set of steps. हम लोग log लेंगे दोनों साइड में. We will take log. तो हमारा कैलकुलेशन ऐसा रहेगा, log of OH minus इज इक्वल टू Kb इंटू, यहां पे देखो BOH क्या है? तो BOH है बेस. BOH क्या है? बेस. और K के बदले इधर क्या आएगा? Kb. ओके, एंड इंस्टेड ऑफ H प्लस वी विल हैव OH माइनस. तो ऐसा हमारे पास इक्वेशन आएगा. अब taking log on both sides, we will have log of OH minus is Kb into, ये बेस है यहाँ पे, अभी तक log लिया नहीं है हम लोग ने. ओके, तो log जब पहले तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगा, this equation is same as what I have written here. फिर हम लोग log लेंगे दोनों साइड में, तो this is log now. तो यहाँ पे भी log जब लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? when we take log of Kb, तो log of Kb आएगा यहाँ पे, और log of यहाँ पे क्या होगा? OH माइनस. फिर यहां पे क्या होगा? प्लस लॉग ऑफ, यहां पे हमारे पास आएगा बेस कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन. एग्जैक्टली सेम स्टेप्स जो हम लोग पिछले सेक्शन में किया था, जो एसिडिक बफर में किया है वैसा ही है. ओके, तो लॉग ऑफ एक्स वाई, ये x है ये y है, तो लॉग ऑफ एक्स वाई इज लॉग x प्लस लॉग y. तो लॉग ऑफ Kb प्लस लॉग ऑफ
बेस अपॉन सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। अब फिर से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब माइनस लॉग ऑफ OH माइनस क्या होता है, POH। ओके, और माइनस लॉग ऑफ KB क्या होगा, PKB। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, माइनस को प्लस करके इनवर्स हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो बेस अपॉन सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के जगह पे हो जाएगा सॉल्ट अपॉन बेस कॉन्सेंट्रेशन। तो दिस विल बी द इक्वेशन POH के लिए। तो यही इक्वेशन हम डिराइव करना चाह रहे हैं, और वही इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब किसी ने बोला कि हम लोग pH निकालना चाह रहे थे, क्या pH बेस के लिए निकाल सकते हैं? यस, बेस के लिए pH निकाल सकते हैं, और बेस के लिए pH ग्रेटर देन 7 आएगा। तो कैसे निकालेंगे? We will use this identity pH plus POH equals 14. So therefore POH equals 14 minus pH. तो POH को लिख दो 14 minus pH. This equals PKB plus log of salt upon base concentration. तो आ गया हमारा pH। तो pH का इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो pH इक्वेशन विल कम आउट टू बी 14 माइनस PKB माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज हाउ वी डिराइव द हेंडरसन-हासेलबैच इक्वेशन फॉर डिसोसिएशन ऑफ फॉर एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर के लिए हमारा इक्वेशन ऐसा है, दिस इक्वेशन इज फॉर व्हाट, एसिडिक बफर। इसमें हम लोग pH का जनरली बात करते हैं, एंड दिस इक्वेशन इज फॉर बेसिक बफर। इसमें हम लोग नॉर्मली POH का बात करते हैं, बट फिर भी अगर pH निकालना है तो यूज दिस इक्वेशंस। pH plus POH is 14, तो POH is 14 minus pH। तो on substituting POH is 14 minus pH, we will get this equation will be the equation of pH for basic buffer. So this equation is widely used in problems. Henderson-Hasselbalch equation acidic buffer, basic buffer के problems में बहुत बार use होगा। तो make sure you understand the terms here. pH is minus log of H plus concentration, pK is minus log of Ka, and concentration of salt we will take in molarity units. कौन सा यूनिट होगा? मोल्स पर लीटर। मोलारिटी मतलब मोल पर लीटर। और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन भी हम लोग मोलारिटी यूनिट्स में लेंगे। और अगर POH का बात चल रहा है बेसिक बफर के लिए, या pH का बात चल रहा है बेसिक बफर के लिए, so we will use these formulas where again the terms are obvious. PKB is minus log of KB, and salt concentration हम मोल्स पर लीटर में लेंगे, बेस concentration भी हम मोल्स पर लीटर में